Good morning to you all. We all are assembled here for in-house training program conducted by Bhagwat Vidyapeeth, Chhabra, and today's topic is essential components of an effective lesson plan. लेसन प्लान ये क्या क्या आवश्यक तत्व है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे. Yesterday our principal sir had very fine delivered about lesson plan, and this topic is also related from that lesson plan. Whether you teach several subjects or you have to teach content of a lesson, so we all need to make a plan. The quality whatever you have to deliver, the part determine how efficiently the class time is used and how much content we have to give to the students, and students learn in each period and they also want to learn main points, important points in that particular period. Lesson plan do not have to be lengthy, it will be in short, and the main thing to make sure the content, the main elements of the lesson, and there are going to guide your instruction so you can maximize class. अधिक से अधिक समय हमको मुख्य बातों पर देने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड, दैट इज द लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड टाइम इन योर हैंड फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. And lesson plan provide you and your students with a clear sense of direction in the class. Remember that they do not have to extensive. They are meant to guide and assist you maximizing classroom time. Avoid during the period, during the class, avoid to watch excessive amount of informative into one lesson. Remember that the lesson can be spread out into daily necessary. अगर मुख्य पॉइंट से हम अलग होंगे तो जो टाइम बाउंड है हमें कंप्लीट करने का, whatever we have planned, we cannot achieve that goal. We take more and more time to complete one lesson or one chapter. Sometimes students, when they enter in the classroom, some students, some notorious students also are there. They try to
disturb you. After entering in the classroom, there was much crowd in the classroom if there was no teacher. So first of all, how we have to control them before delivering our speech, delivering the points, explaining the points. Sometimes students use unnecessary word during the class. When we want to start the class, they try to disturb. In every school, I think, students give a proper, or not, we cannot say proper, nickname of every teacher. In the same way, in this school also, students give a nickname of different teachers. This teacher is coming, that teacher is going. I do not want to disclose this thing, but about me, there was a student, I think before 7 or 8 years before, the student was in class 10th, and his father's name was also Jaiprakash Singh of Rivilraj, and he was an army person. And one student always tried to tell him, your father is coming. When I am entering in the class, oh, your father is coming. I did not know what is the matter. I am English teacher, I am Jaiprakash, I am not his father. I went there and asked, what you are talking? Other student, his friend told him, he told you are father of that boy. I am father. How? You don't know, his father name is also Jaiprakash. That students try to stop that student, don't tell me your father is coming. And after that, they called me, Chacha is coming. So my nickname is Chacha in this school, if you don't know. Sometimes some students tell in the class, oh, what Chacha is doing, what he is doing fine. One day, I have remembered one student is very notorious. He always tried to tell, oh Chacha, oh Chacha. I fed up, what's the matter? One day I go there, I went there. Oh, stood up. Why you called me Chacha? That is then sorry sir. I mean, don't sorry. You have made a great relation, and relation between you and me. हमको तो तुमने धर्म संकट में डाल दिया, अब तो हमको घर पर चलना होगा। पापा कहाँ क्या करते हैं? तो सेना में है, तब तो हमको देखना आना पड़ेगा तुम्हारे घर। चाचा का कुछ कर्तव्य होता है कि पापा नहीं है तो कुछ कमियां हैं उनको दूर करेंगे हम। कुछ और जरूरत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को भी लोग चाचा नेहरू कहा करते थे और उसको अच्छा लोग मानते हैं। हम भी चाचा हो गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आते हैं घर, चले ना शाम को आते हैं। उसके बाद से वो लड़का बोलना ही छोड़ दिया हमको, कभी चाचा कहा ही नहीं। हम पूछे भाई चाचा वाला कहाँ गया? वेयर इज दैट स्टूडेंट? तू आया हुआ था, चुपचाप सा नीचे कर दिया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है घर पे। तब से वो बोला बेचारा। तो हाउ टू डील
such a words, this is the main. कोई कुछ बोलता है तो उस पर रिएक्ट ऐसा नहीं करिए कि उसको लगे कि इस पर चिढ़ रहे हैं, then that is when we try to always disturb. आप चिढ़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम होता है। आप उसको अदरवाइज नहीं लेकर उसको इसलिए ले लीजिए कि वो सोचना पड़े उसको कि हम बोले कि नहीं। तो दिस इज बिफोर एंड this thing is not written in this lesson plan, but some techniques we have to follow during our class. There are the main points, essential components of effective lesson plan. There are main 7 components which are essential for effective lesson plan. First, necessary material. Second, clear objectives. Third, background knowledge. Fourth, direct instruction. Fifth, student practice. Sixth, closure. And at last, demonstration of learning. Demonstration of learning or quick assessment. These are 7 main elements, main points we have to follow during our lesson. These are main elements. इन बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि इन एलिमेंट को हम अपने लेसन प्लान में शामिल करें। फर्स्ट पॉइंट, नेसेसरी मटेरियल्स। नेसेसरी मटेरियल्स, व्हाट विल यू नीड टू टीच द लेसन। दिस इंक्लूड एक्सपीरियंस सप्लाइज as well as your own. नेसेसरी मटेरियल में आवश्यकता होती है कि बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन वी हैव नेसेसरी मटेरियल्स लाइक बुक्स, chalk, duster. Particularly in our school, we need duster and chalk in the classroom, or if there is whiteboard, we need marker. But lots of time we waste our time to searching chalk, duster, and generally marker. So this one is totally wastage of time. We have only 40 or 45 minutes. And we are searching generally in first period. This situation faced during first period. Always chalk is not present there. If we want to write date, lesson, this, that, then we call some students for chalk and duster and this. So we need materials. And don't forget about these all things. And make sure have something, everything situated, so you are ready to tell when your students arrive. You don't want to be scrambling around the period. And in the middle of lesson हम पढ़ा रहे होते हैं और बीच में हम कोई चीज़ खोजने लगते हैं, अचानक ये कहाँ है, उससे टाइम वेस्ट होता है और जो प्लान हम बनाए हैं उससे हम दूर हटते चले जाते हैं। Having your resources lined up ahead the time save variable
class time and give you great peace of mind. पहले से अगर क्लास टीचर हिदायत देकर रखें या स्कूल प्रिंसिपल को कह के रखें कि सर फर्स्ट पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चौक और डस्टर नहीं मिलता है, नहीं रहता, तो यहाँ से यह प्रोवाइड किया जाए पहले क्लास शुरू होने के पहले। मॉनिटर को हम कहकर रखें भाई यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, या क्लास टीचर रजिस्टर अपना लेकर जाते हैं उनके साथ में लेकर जाना। So necessary material we have before the class. Remember, याद रखने की एक बात है, remember that begin planning your lesson with the end in mind. जब भी हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स को बताना शुरू करते हैं, we have to pre-plan कि how I have to and when we have to end my point. Which point is the end point? शुरू करने से पहले दिमाग में एक बात हमको रखकर स्टार्ट करना है कि हम यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं और यहाँ हमको बंद कर देना है। Plan backward by knowing in advance exactly what you want your student to grasp by the end of the lesson. और हमें यह सोच कर चलना होगा, चलना पड़ता है कि हम जो शुरू किए हैं उसका अंत भी अच्छा हो और स्टूडेंट के हक में हो और उनके समझ के अंदर की बात हो। We have in our mind that in which class I am delivering or expressing or explaining the thing. When we are in class 3 or 4 and if we try to give the very high points, high thinking, high level content, it will be totally wastage of time. The students cannot understand that. हम लोग को जाना पड़ता है कभी नीचे भी कभी ऊपर भी, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। जाने के पहले टेक इट पॉजिटिव ड्यूरिंग सच पीरियड। किसी भी पीरियड में जाएं, आपका लीडर होगा, अगर टीचर के द्वारा दिया जाए कि इसमें चाहिए, हैप्पीली यू हैव टू, खुशी से जाइए। लीडर जो लगा रहे हैं आपको, उनको बोलने के पहले, उनको गाली देने के पहले आप सोच लीजिए कि बड़ा आज मौका हमको मिला है कि इस क्लास में हम आज जाएंगे। जहाँ आप नहीं जाते हैं वहाँ जा रहे हैं, तो उतना हमको खुशी आनी चाहिए कि हम उसको कुछ क्लास में आज देकर आना है। बोझ नहीं है, स्कूल है, हम लोग टीचर हैं, हम ही लोग को बीच से कोई ना कोई उस क्लास को मैनेज करेंगे। स्ट्रेस होता है, उसको दबाना पड़ता है, और जनरली प्राइवेट जॉब में अगर कोई है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। सरकारी आदमी है तो अपना सस्पेंड भी हो जाएगा, तो हाफ पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे पैसा भी नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड, नो योर क्लास ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट इज नो योर क्लास objective. What exactly do you want your student to be able to do by the end of the lesson? हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो कुछ हमको देना है, स्टूडेंट को समझाना है, बताना है, वह एंड ऑफ लेसन वहाँ तक हमको कंप्लीट कर देना चाहिए, हमें समझा देना चाहिए। This should be clearly
communicated to your students orally at very beginning of the lesson and posted in a highly visible location in your class. orally हमको जाते समय बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि देखिए यह पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और it is helpful to have a specific place in your room where you regularly post your objectives. जहां हम पढ़ा रहे हैं जिस क्लास के सामने, वह हमारा एक स्थान निश्चित होता है और वो ऐसा प्रॉपर स्टेज वहाँ होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, so that every student can see you easily, आपको देख सके, समझ सके। एक बार ऐसा हुआ था, हमें याद है कि जंगली जी ठेकेदार थे, बनाए थे इधर रूम, क्लासरूम बना था, तो उस पर स्टेज नहीं बना हुआ और एक शॉर्ट हाइट की लेडी टीचर आई थी स्कूल में, अभी नहीं है, तो डायरेक्टर सर एक बार घूम रहे थे तो लिखने के लिए वो काफ़ी मकसद कर रही थी, हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था। डायरेक्टर सर जब घूमते हैं तो थोड़ा वो वॉच करते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं क्लास में क्या हो रहा है नहीं। वो तो अंदर आकर पीछे से बैठ जाते थे, या किसी को पता नहीं टीचर क्या कर रहे हैं। टीचर जैसे लिखने गए वो आकर पीछे बेंच पर बैठ जाते थे। तो एक बार देखे कि मैडम बड़ा मकसद कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो उनको उछलना पड़ता था लिखने के लिए। वो पहुँचती थी तो ब्लैक बोर्ड के यहीं तक आ पाती थी, अब इतना हाथ खाली रह जाता था। वो देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो वहाँ स्टेज नहीं बना हुआ था, तो तुरंत बुलाए जंगली जी को कि भाई जल्दी से एक स्टेज यहाँ बनवाइए, हाइट करिए इसको। कोई ज़रूरी है कि 6 फीट का टीचर यहाँ आएंगे हमेशा, कोई 3 फीट का भी आ सकता है, समय क्या होगा, आप हाइट दीजिए इसको, जो लंबा होगा थोड़ा बीच ऊपर लेकर छोटे गए और जो छोटे हैं अपना यूज करेंगे उसको। तो दिस वन इज द प्रॉपर प्लेस, यू हैव टू प्रॉपर प्लेस इन द क्लासरूम सो दैट एवरी स्टूडेंट सी यू क्लियरली एंड लिसन योर वर्ड्स। And to have a set routine in terms how you introduce objectives such as asking your students to read them aloud with you at the beginning of class each day. हर दिन हमें पढ़ने के बाद स्टूडेंट से शुरू में हमें उसको क्लास को अरेंज करने के लिए if they are making noise we have to tackle them, say some words loudly, कुछ वर्ड ऐसा हम बोलेंगे कि बोलेंगे बोलो तुम भी बोलो। बच्चे सब जब एक साथ बोलेंगे तो सोचेंगे कुछ हो रहा है और आगे कुछ होगा। जो इधर उधर लगे हुए थे वो भी उसी हल्ला में आ जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे यस सर, कोई भी वर्ड हम दिए वो चिल्लाएंगे, फिर वो कंसंट्रेट होंगे धीरे धीरे। तो ये हमारा क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चों को पहले शांत करने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। एंड कम्युनिकेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू योर स्टूडेंट्स बोथ ओरली एंड in writing, engage them some activities. We always say note down difficult words or note some points. I will ask you what you are doing and serve to motivate them to work with clear purpose in mind, and it makes easier for you and your students to stay on a target throughout the lesson.
और कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके हमको टारगेट फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स को और टीचर दोनों के लिए ये फायदेमंद होता है। The objective should be ongoing focus of your lesson पर अधिक हमें फोकस करना चाहिए। पढ़ाते वक्त बहुत सी बातें दिमाग में आती है जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी टीचर बोल देते हैं, बोलना पड़ जाता है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत होती है। एंड मैक्सिमाइज योर एफर्ट टू क्रिएट सक्सेसफुल लर्निंग आउटकमिंग with smart objectives. Smart objectives is a new technique. SMART stands for specific, measurable, attainable, relevant and time bound. टॉपिक कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, समय के अंदर वो लेसन प्लान के अंदर वो आ जाना चाहिए। लेसन प्लान में हम बहुत सा पॉइंट दे देते हैं और पता चलता है कि उस पॉइंट में 5 पॉइंट दिए जिसमें 2 ही हम एक्सप्लेन करें। तो एक दिन से हमको सीख लेनी चाहिए कि पीछे जो हम प्लान बना रहे हैं कहाँ हम फेलियर हो रहे हैं, वेयर आई है मिस्टेक। तो उसे सीख लेकर नेक्स्ट प्लान में हमको सुधार लेना चाहिए कि हम 5 पॉइंट किसी दिन पढ़ा ही नहीं पा रहे, 2 पॉइंट कर पा रहे। फिर आप देखेंगे कि इस टाइम बाउंड में हमको सिलेबस को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ाना होगा कि किस आधार पर हमको चलना होगा, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। By the end of the lesson, a student will correctly underline and label the subject and predicate of sentences 8 or 8 times. In every class, we have to give some target for a student also. You have to note down some words or some points which is difficult for him, and before ending the class, if there was 5 minutes left, we give the student to ask if you have any problem. क्लास खत्म करने के पहले प्रॉब्लम को सुनना जरूरी है कि आप जो हम बताएं इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम्स हुए तो आप बताएंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम वी कैन से दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू। कंप्लीट हो गया, हम लेक्चर देते रह गए, अंत तक बेल बज गई और उसके बाद हम चल दिए तो ऑब्जेक्टिव जो था हमारा पूरा नहीं हुआ। 5 मिनट टाइम हम लोग को देना पड़ता, तब जाकर उसको हम सार्थक क्लास प्लानिंग, लेसन प्लानिंग उसको हम मान सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज। Activate background knowledge. Set the stage by the tapping into your students' background knowledge.
previous life experience, prior learn, or both, to prepare them for new concept you are about to introduce. बैकग्राउंड नॉलेज का अर्थ यह हुआ कि कुछ ऐसे नॉलेज हैं जो पहले बच्चे को जानकारी थी, अगर नहीं है तो आपको, अगर कुछ आप जानते हो पहले बैक से आप कुछ शिक्षा लिए हो और जो आपके लिए उपयोगी होता है क्लास में, दैट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, यू नीड टू डिलीवर दैट थिंग ऑन दैट एक्टिविटी. Previous experience, there is an previous experience is also very helpful for the students. There was an incident, and that we can say funny incident. I want to share with you, sir. May I share? I want to share. This is funny. Here with your limits, sir. And I have remembered that it was nearly 16 or 17 years before. There was our Datta Madam principal. And I was English teacher of class 3 and 4 on that time. 3-4 में हम इंग्लिश पढ़ाया करते थे. 16-17 साल हो गया होगा, ये पूरे टाइम में एग्जाम था. And I was given a paragraph for students to write the cow and यानी टेस्टिंग. इसे लिखवाया गया, बताया गया कि लिख कर आइए, याद करके आइए, सुना गया. There was a very weak student in the class. एक लड़का था बहुत कमजोर, and I had given the topic my mother in examination. अब तो वो काउ पर याद करके आया था, हमने माई मदर दे दिया और एक फेस्टिवल दिया था, तो वो काउ पर ही रट कर आया था. वो भी स्टूडेंट, गार्जियन बोले थे कि बेटा रट जा, इसको काउ जरूर आने वाला है. पूरा रट कर आया था, बहुत मेहनत किया था बेचारा. एंड ऑन दैट टाइम सब्जेक्ट टीचर वाज एज अ क्या बोलते हैं reliever, yes, reliever. And subject teacher were reliever. I was also reliever on that time during English examination. I was moving in different class here and there. When I reached in the class, one student, that weak student, stand up, sir. I asked, have you any problem according related to question? Every student told, no sir. One student stand up, sir, please come here. आइए सर. What's matter? क्या बात है? तो सर आप काउ पर लिखवाए थे, बोले थे याद कर लेना. हम काउ को याद किए थे, आप माई मदर देखिए. अब देन व्हाट? मदर आ गई तो क्या इसमें गलती हो गई? तो हम मदर पे याद नहीं किए थे, हम काउ पे याद किए. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. काउ क्या है? गाय क्या है? गाय हमारी माता है. अब तो ये बताओ, मदर है तो वो लिखवाए हैं तो उससे रिलेटेड है कि नहीं है? उसी आधार पर तुम मिलाकर अपना समझो, अगर नहीं है तो मिलाकर अपना करो. गाय भी माता है और तुम्हारी मदद पर दिए हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है. He told, yes sir,
आई अंडरस्टूड नो ओके, हम समझ गए सर, आप जाइए, हम लिखेंगे। ये स्टार्टेड राइटिंग माई मदर हैज 2 legs and 2 hands, 2 years। मिलाया पहले लाइन से कि गाय का चारा है, माँ का दूध जरूर है। माई मदर ईट्स ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दिस टाइप। माई मदर द काउ गिव्स मिल्क। अब सोचे कि इसमें हम क्या लिखें, उसमें भी कुछ लिखा हो, अपने हिसाब से लिखा। जब कॉपी चेक किया गया, आफ्टर चेकिंग दैट कॉपी, आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी ऑल दीज थिंग्स। आई वेंट इन द क्लासरूम एंड आई शो दैट पैराग्राफ इन द क्लासरूम। देयर इज अ वेरी good student who have applied his mind how to write any essay. Don't worry, नहीं याद किए, नहीं आया, मिला कर लिख दीजिए किसी से। सुरेंद्र सर, please if you want to give any marks on that paragraph or not, ऐसा पैराग्राफ अगर मिल जाए तो आप मार्क्स देना चाहेंगे? देना तो पड़ेगा, कैसे देना होगा, वही तो एक्सप्लेन करना। बिना सर, जब वो आपको बोल रहे हैं तो बताएं। इस तरह से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको मिल जाए तो इस पर मार्क्स दिया जा सकता है, एक भी कि नहीं दिया जा सकता। According to my point of view, if we go through the topics, something should be provided. According to me, I will provide. According to CBSE guideline, if the context is given by the student, up to somewhat extent, it may be provided. It may be. And also, during the background knowledge, the point is to make connection between what your student already know and what you are going to teach. क्लास शुरू करते हैं तो हम ये बताना पड़ेगा, पहले बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए, टॉपिक क्लियरली रिटन होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। बच्चों को साफ क्लियर होना चाहिए पहले कि इस टॉपिक को बताया जा रहा है, और आपको भी उससे मदद मिलेगी कि हमको इस टॉपिक को आज ये डील करना है। Involve your students in the discussion by asking some question. Share your thoughts also. Some response you have to make. You may get are interesting characters, interesting plots, suspense. क्लास को रोचक बनाने के लिए सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है कभी कभी। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी की भी मदद दी जाती है जनरली इन लिटरेचर। Perhaps you have taught other forms of figurative language such as hyperboles and personification. Review everything in brief. जो कुछ हम बताए उसको लास्ट में ब्रीफ में संक्षेप में उसको एक बार शुरू से अंत तक उसको हमें बता देना चाहिए। कोई बच्चा अगर नहीं भी सुना किसी कारण से तो उसको वो पॉइंट दिमाग में आना।
सर ने कल बताया था कि जो सीरियल की बात की, पिछले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, क्या होगा, तीनों चीज एक साथ जब होता है तो ना ही देखने वाले भी लास्ट जब शुरू में देखते हैं तो पता चल जाता है कि कल क्या क्या है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट whatever we have explained yesterday. If there were any student, absent students, they also grasp that thing easily. वो बोलते नहीं हैं, जानते हैं कि हम एक दो आदमी एब्सेंट हो गए, इतने प्रेजेंट थे, तो दोबारा एक कल की बात बताएंगे नहीं, बहुत टीचर डांट देंगे, तो बड़ो नहीं आता है और चलते हो कहानी को फिर से पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना बोले आप कल की बात थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बता। हम लोग कहानी शुरू करते हैं तो कल क्या हुआ, जल्दी से 2 से 3 मिनट में उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो जो बच्चा नहीं आया वो समझ गया कि कल ये चीज हुआ, फिर आज अपना शुरू हुआ। Be sure to model plenty of examples of part of your direct instruction. कुछ मॉडल्स, कुछ एग्जाम्पल्स बीच बीच में उसको देखकर समझाना चाहिए, क्लासरूम उससे मैनेज रहेगा और जो भी प्लान आपने बनाया वो आपका सफल होगा, वो हेल्पफुल। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज द मीन ऑफ योर लेसन प्लान। आपके लेसन प्लान का मध्य का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा। आप बीच में उस प्लान के पहुंच जाते हैं एंड इट इज वेयर यू प्रेजेंट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज इंक्लूडिंग इन द लेसन ऑब्जेक्टिव। और उस लेसन में जो भी मुख्य बातें रहती हैं उस पर हमें फोकस देना चाहिए उस वक्त कि अब देखिए मेन पॉइंट्स जो थी, अब इसमें क्या क्या हमको समझाना है, क्या हम बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए, इसमें एंड इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और टेक्स्ट विल इंट्रोड्यूस टू देम। When students know these keywords in advance, they can focus more their energy into learning the concept or understanding the text. पढ़ाने से पहले आप एक दिन बच्चों को कह देना चाहिए कि देखिए कल हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको एक बार देख कर आइए, पढ़कर समझ कर आना है, डिफिकल्ट वर्ड्स नोट करके आप आइए या उसको आप डिक्शनरी से कंसल्ट करके एक बार आइए, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी फिर हम आपको सॉल्व करेंगे। उससे होता क्या है कि जो कुछ हम समझाते बताते हैं क्लास में, बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाती है वो बात कि प्री हैंड वो प्रिपेयर्ड रहता है और उसको थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है और वो बात को सब समझ में। There was an incident also. I have told in the class 9th, there's a, you know, Gulliver's Table. Gulliver's Table is a very fine novel written by Jonathan Swift. उस समय हम लोग को CBSE बोर्ड के द्वारा Gulliver's Table पढ़ाने में मिलता था। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, उसमें चैप्टर वाइज अलग अलग उसमें रहते थे, बहुत से चैप्टर्स थे उस नॉवेल में। तो हम बोल दिए थे कि देखिए इस चैप्टर को कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप एक बार पढ़ कर आइएगा इसको। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो अच्छे हैं अपना पढ़कर आते ही हैं, 50% तो पढ़कर आते हैं, बड़े 50 नहीं आते। तो क्लासरूम में हम पढ़ा रहे थे एंड Gulliver, in this novel, Gulliver traveled many
आइलैंड्स, डिफरेंट आइलैंड्स। वो दुर्घटनावश अलग अलग आइलैंड पर चला जाता है। कभी किसी आइलैंड पर पहुंच जा रहा है, कभी किसी आइलैंड पर चला रहा है। अमेजिंग आइलैंड पर कहीं कहीं वो पहुंच जा रहा है। कभी लिलीपुट में चला गया, जहाँ कहीं बड़े लोग थे, वहाँ पहुंचा तो सब लोग तीर चलाने लगे, दुश्मन आ गया। इनका 6 फुट का शरीर, तीर लग रहा था कि थोड़ा सा सुई जैसे हम लोग को चुभता है, वैसे इनको लग रहा। सब आर्मी जो थे उनका लगे तीर चलाने, सब इतने ही फुट के थे। उनका तीर कितना बड़ा था उसे सोचना। वहाँ पहुँचे हुए थे, फिर भी बहुत कोशिश करके बांध बोल कर, और एक कारपेंटर को कहा गया कि भाई थोड़ा सा वो गाड़ी बना, उनको लाद के ले चला जाए राजा के पास। बहुत मस्तक करके ले गए सब। राजा भी तो कहीं बड़े थे, थोड़ा सा बड़े हो गए। राजा का थोड़ा हाइट ज़्यादा हो जाता है प्रजा से। तो राजा और रानी देखे, कहे कि भाई बहुत अद्भुत चीज आ गया, तुम लेकर आए, खोलो इसको, खोल दो जल्दी से। तो नहीं खोलेंगे नहीं तो कहीं आप जो काम कर देगा तो भयंकर है, क्या है पता नहीं। तो इसी तरह घूमते घूमते एक ऐसे आइलैंड में चला गया जहाँ बहुत मुश्किल इसको बता दें। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ कर आते हैं, कभी कभी टीचर के लिए मुश्किल का कारण भी बन जाता है। जब आप पढ़कर नहीं आए ठीक से और बच्चे पढ़कर आ गए, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं फंस जाए। तो जिनको पढ़ने की आदत ना हो, बच्चे को सलाह ना दे कि पढ़ रहा है, ताकि जो कुछ हम बताएं बच्चे सुनते जाए। जिनको पढ़ने की आदत नहीं हो वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दे। तो मुश्किल जहाँ होगा हम वही एक बताना चाह रहे हैं। तो फिर आगे टॉपिक पे तो पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसे आइलैंड में वो पहुंचा हुआ था गुलिवर, कि वहाँ की लड़कियां बहुत बदमाश थी। कहने का कि वो ऐसा है ही, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं। और जब वो देखा गुलिवर कि लड़कियां उसको परेशान जब करने लगती है, तो वहां से जान बचाकर भागना चाहता है। He want to escape from that island, लेकिन संख्या इतनी अधिक है कि वो जान बचाकर भागता है। तो कुछ बातों को हम स्केप करना चाहे, लेकिन जो पढ़ कर आया था बोला कि सर नहीं, आप छोड़कर कुछ भागे। वो ऐसी चीजें थी जिसको हम लोग बताना हमारे लिए चाहे किसी के लिए ठीक नहीं होता है। तो मैंने अभी भी आदत है छोड़ के आगे बढ़ने की। उसको आगे बढ़ना पड़ा। वो लड़का चाह रहा था कि सर इस बात को खोल दे क्लास के सामने ताकि मजा आ जाए, मजा आ जाए। लेकिन हम सोचे कि भाई इसको खोलना ठीक मजा देंगे नहीं खोलना। समझदार हो भाई, 9th में हो, कोई बच्चे हो, नहीं समझ गए बहुत कुछ। तो कंप्लेन किया मैडम से कि मैडम जेपी सर क्लास से बहुत कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। मैंने बुलाई थोड़ी देर के बाद कि सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कहानी बीच में छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। हम किस तरह से अंकल 9th में आप सुने हैं कि कुछ पढ़ा रहे थे, बगल वाले छोड़ दिए। हम बोले मैडम उसमें ऐसा चीज लिखा हुआ था जिसको आपको भी हम नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या करते, छोड़ना पड़ा हमको। तो क्या है लेकर आइए, हमको नहीं पता। वो ये मैडम जी क्या नाम है, भट्टाचार्य मैडम। तो मैडम हम आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको अगर बताना चाहें तो जाकर बता दीजिएगा, हमसे नहीं। तो मैं जब पढ़ी तो सर कहाँ कर हंसते रह गई कि जेपी से बहुत अच्छा किए नहीं बताया, ये तो बताने लायक है ही नहीं। तो वैसे ऐसे टॉपिक बच्चे जब पढ़ कर आएंगे तो उससे बचना भी पड़ता है। एनसीईआरटी की बुक थी जी, ये सर अरे सर यूनिवर्स लेवल इसको अगर यूनिवर्स पढ़ा जाए तो इतना इंटरेस्टिंग सब आइलैंड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। स्टूडेंट प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 स्टेप्स: गाइडेड प्रैक्टिस,
collaborative practice and independent practice. These three steps process allow you to gradually release your students from watching you model the correct application of the concept to allow them to apply the concept independently. स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हमें तीन तरह से कराना चाहिए। गाइडेड प्रैक्टिस का अर्थ हुआ कि वी गाइड द स्टूडेंट्स कि यू हैव टू डू दिस 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 एंड दैट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट फॉलो योर गाइडलाइंस and they will try to understand that thing according to your guidelines of your after you have presented the after you have presented the new concept and model of your example of your कुछ मॉडल देकर उसको गाइड करना चाहिए, या आपके पास कोई विशेष कोई ऐसा मॉडल है या कोई ऑपरेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको देकर समझाइए कि इसके द्वारा इसके हेल्प से आप यह काम करिए, प्रैक्टिस करिए। इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स इन a few additional examples using the board or document camera. They will gain confidence as they go through process. आपके साथ मिलकर आपके गाइडलाइंस के अनुसार अगर वो काम करते हैं, सीखते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होती है and they are able to do that thing very nicely. Converse with them through the process, questioning them when they are offering the input. As you maintain your role as leader, you are leader of that class, you are leader on that place, and whatever you are expressing or delivering, students learn that thing, think you a model, so they can understand that thing easily. At this point, they are still under your writing, being as you walk through the process. आप जैसे चलते हैं, बच्चे वैसा ही करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग रोल मॉडल होते हैं। इसलिए क्लासरूम में भी हमें कुछ ऐसे एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जो बच्चे को जिसे गलत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हम तो रोल मॉडल होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारे ये टीचर जो है ऐसे करते हैं, वो टीचर है जो ऐसे करते हैं, तो अच्छी चीज़ों को हम लोग को समझाना और उसको दिखाना चाहिए, ताकि वो बात को, जैसे हीरो जो होते हैं अपना एक डिजाइन बाल कैसा बनवा लेते हैं, पूरा इंडिया में लोग उसको कौन कौन यहाँ बीच से काटने वाला लोग बना लेते हैं, तो रोल मॉडल मानते हैं कि शाहरुख खान ने ऐसे बना लिया, तो अमिताभ बच्चन ऐसे मूंछ रख लिए, तो ऐसे ये कर दिया, तो रोल मॉडल उसको मानकर और वो चलने लगता है। हम लोग किसके लिए रोल मॉडल है? स्टूडेंट के लिए। हम लोग जो स्टाइल लेते हैं, जो करते हैं, बच्चा सोचता है कि हम भी जब बड़े होंगे तो हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही ये चीज़ रखेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, तो हमारे गाइडेंस का बहुत प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। Second, collaborative practice. This is where student to get apply the new concept in cooperative activity. This include working with partner or in a small group. हम लोग बहुत बार ग्रुप में बहुत सी एक्टिविटी स्कूल में कराए हैं, होते ही रहता है। कभी कभी ऐसे कुछ होते हैं कि हम एक ग्रुप बना देते हैं
कुछ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, कभी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होता है, कभी क्या होता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हम देते हैं कि 10 का टीम बना दिए, 40 स्टूडेंट्स हैं तो अपने सुविधानुसार 5 का या 10 का ग्रुप बनाकर उसको देते हैं कि सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना। तो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस is also needed for our better lesson plan. Circulate the rule to check the understanding and the students' work. When the students are working, we need to move in the classroom. We don't try to sit and go near to the student and ask, have you any problem? आप जो बना रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पूछना है, have you anything to ask? So that thing will be better. They can do better work, better job if we ask them their problems. If necessary, go back and model a few additional examples followed by additional guided practice. Third point, independent practice. Independent practice, once a student had the opportunity to apply and practice the concept with their classmates through collaborative activity, it is time for them to apply and practice concept of them. पहले कोलैबोरेटिव हम कराए, कोलैबोरेटिव के बाद फिर कहे कि आप फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो जो बच्चा नहीं जानता था जिसके बारे में, वो साथ में ग्रुप में मिलकर उन बातों को समझ गया, जान गया, और अकेले फिर उसको टास्क हम देते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस देते हैं, तो वो करने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है, वो उसको इजीली हैंडल कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजर। Next point, closure. This is where you wrap it up. It is quick synopsis of the lesson. You may want to ask a student to share your something they learned that clear or provide an example of concept. What will you do? क्लोजर में क्या करना चाहिए, जब हम क्लास को अपने पॉइंट्स को जब एंड करते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो मेन पॉइंट्स हम लोग को याद रखना होता है, याद रखना चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक जो भी हम बताएं, एक बार जल्दी से उसको बोले कि हम जहाँ से शुरू किए थे अब उसका देखिए वहाँ से हम अंत करेंगे within 2 minutes or within 3 minutes or 1 minute, what you want. तो एक शुरू पॉइंट से लेकर जल्दी से उसको बोलना शुरू करो कि ये ऐसे हुआ, यहाँ से शुरू किया हुआ था, ऐसे हुआ, फिर यहाँ आकर देखो अब ये एंड। तो जो बीच में बच्चा अगर कुछ नहीं भी सुना, नहीं समझा, तो उस समय वो ध्यान देगा कि हाँ भाई कुछ हम नहीं सुन पाए थे, बात में इधर उधर लग गए थे, इसको एक बार सुन लेते हैं क्या पॉइंट है। तो जल्दी से उसको समराइज जिसको हम बोलते हैं, समराइज एकदम पॉइंट्स को मेन जल्दी से एक बार कर दीजिए, क्लोजर अपने पॉइंट्स को करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स उसके लिए हम दे देंगे। एंड फॉर एग्जांपल टुडे वी लर्न अबाउट दिस एंड टेल योर पार्टनर an example about this. हम पूछेंगे वहां पर क्लास से बात करेंगे कि आज हमने ये टॉपिक बताया और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, इसी से कोई बात तुम जुड़ा हुआ कुछ बताओ। वो नहीं फेलियर हो गया तो अदर स्टूडेंट को कहेंगे आप इससे मिलता जुलता कुछ बताएं। जब ऐसा हम करेंगे तो नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला भी किसी दूसरे स्टूडेंट के द्वारा बताए बातों से सीखेगा।
नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग और क्विक असेसमेंट। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग DOL assessment evaluate whether or not your student met your lesson objective. It aims to provide you with valuable feedback which you derive your instruction, accurately reflect the learning objective and allow your student to apply what they learned during the lesson. क्विक असेसमेंट का अर्थ हुआ कि जल्दी से हम लोग एड करने के पहले एक बार असेस कर लें 1 by 1 हर स्टूडेंट से कि आपने ये बात समझा कि नहीं। एंड इन दिस वे आई एम गोइंग टू एंड माय दिस सेशन। थैंक यू।